foundation of individual behavior. Okay, what is the name of the topic? Foundation of individual behavior. Are you getting my voice properly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The most important thing is that why this term foundation has come in this topic. This is the important part. This is the important part. Means if you are only talking about individual behavior, that creates a different zone. But while if you have been expected to go for foundation of individual behavior, it means definitely there would be a meaning to teach you this topic. Okay, so in this subject organizational behavior, first I will tell you what is behavior. If you go through the definition of behavior, this is the simple definition that action or reactions of a person in response to external or internal stimulus situation. This is the only definition of behavior. Means how do you go through the behavioral prospects just by giving response to any person. If suppose you are living in a forest, there is no any population over there, then in that concern whether your behavior would be judged or not, it's not possible, because there would be lack of environment. If you're not interacting with any other person, then how the other person would judge that what kind of behavior you are having? So definitely there should be some other factors also which contribute something in your behavior. Getting my point? आप समझ रहे हो इस चीज को? अगर आप अकेले हो, if you are individually living anywhere, और आपको कोई मिलने नहीं आता है, if no one is there, then in that case what will happen, that your behavior can't be judged. You would never know what kind of person you are. It's the environment which creates such kind of individual behavior. It's the stimulus situations, whether it is the situation created by family or society or in an organization, that describes your behavior. Then you come across what kind of person you are. Okay, so I'm just going to deal this topic with you, and this topic is very important as far as organizational perspective is concerned. सिर्फ अगर आप behavior पढ़ोगे, it's a normal topic, but once you correlate this topic with organizational perspective, then it becomes very, very important. Okay, so I will share, before sharing my PPT with on this topic. Yes, are you listening my voice properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now I am just going to share my PPT, and through that PPT presentation I will try to elaborate and I will try to establish क्यों इंडिविजुअल बिहेवियर का फाउंडेशन करना बेहद जरूरी है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से. क्यों, why I am again and again emphasizing organizational perspective, because if you are having a behavior in family, then family will not give you clear cut response to your behavior. Suppose if you are very short tempered person, suppose you are very short tempered person in family, always reacts badly with parents or family members. Even after that, family member knows, yes, we have a bonding, we are having a blood relation, then in that case they will not respond in the manner that is expected. तो आपको क्या करेंगे, हमेशा जो है आपको जो है काउंसिल करेंगे, आपकी सपोर्ट में रहेंगे, but this is not the actual behavior which you are carrying in family. Your behavior remains totally, you interact in organization. Once you interact in organization, then it changes. In organization, actual filtration of your behavior comes forward. So through PPT I'm going to just share the screen and we'll start dealing with this topic. Okay, Yes, sir. Yes. Yes, sir. I will just share my screen. Is it visible to you?
Not yet, sir. No, sir. Just a second. Just a second. Is it okay? Now screen is visible. I've just shared my PPT. Not, sir. No, No, sir. sir. So this is the first slide. In this slide, you can find easily that I have given some emojis. It is called emotion mood face chart. Now, if you talk about individual behavior, all the individual people are having the different kinds of feelings, different kinds of mood face chart. If you talk about excited, sad, angry, sick, surprised, happy, unhappy, bored, all different kinds of feelings are over there. सभी इंसान के पास ये फीलिंग्स रहती हैं. बट व्हाट इज द डिफरेंस इफ यू टॉक अबाउट individual behavior? Can anyone say to me what is the actual difference between individual behavior if you go through if you consider these emojis chart? The actual difference remains in the intensity of those feelings. अगर आप देखोगे तो इंटेंसिटी जो है आपको सेग्रीगेट करती है आपके इंडिविजुअल बिहेवियर के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को. How come? Suppose if a person is having angerness in his behavior, but if intensity remains very high, वो बंदा इतना गुस्सा हो जाता है, he doesn't have control over him. तो आप क्या कहोगे? बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है, बहुत गुस्से वाला बंदा है. If you find any person who is sad, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा. So it depends upon person to person with what kind of individual behavior he is carrying. So once you talk about individual behavior, I have written over here that it's the contribution of Almighty God and genes of ancestors to shape up a new soul with certain behavior patterns. Why I quoted in the contribution of Almighty God? Because आपका इंडिविजुअल बिहेवियर जो होता है दो बेसिस पे काम करता है. दो बेसिस क्या होते हैं? फर्स्ट बेसिस inherited characteristics. Inherited characteristics means what? That the characteristics which you get from your ancestors, जो आप अपने पेरेंट्स से आपको मिलता है थ्रू जीन्स, थ्रू बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. आप कैसे कहते हो कि इस बंदे का चेहरा अपने फादर से बहुत मिलता है, या इस बंदे का अप्रोच अपने पेरेंट्स से बहुत मिलता है, या इसके दादाजी ऐसे थे और ये बंदा ऐसा है. तो देयर आर सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. Through that you develop one personality, one behavior. और वो inherited characteristics कैसे हो सकते हैं? That depends upon various feelings. जैसे inherited characteristics में जैसे आपका face, आपका intelligence, आप मेल फीमेल हो, आप जो हो वो आपका जो है जीन डिसाइड करता है. आपका एज फैक्टर, रिलीजन, आई एम गोइंग टू एलाबोरेट ऑल द थिंग्स. बट वन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने एंसेस्टर से लेते हो. आपके एंसेस्टर्स कैसे हैं, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, वो भी जीन आपको ट्रांसफर हो रहा है. दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल. And you have to, the basic point is that you have to live with these inherited characteristics. My dear friends, this is very important. You just remember this line. You have to live with these inherited characteristics. एक विलियम वर्ड्सवर्थ की एक जो पोएट थे, उनकी एक पोएट्री, एक कविता हम लोग बचपन में पढ़ते थे, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. ये बात अर्लियर टाइम्स में मेरे स्टूडेंट लाइफ में मुझे उतनी समझ में नहीं आती थी, बट now I understand what does it mean. जो inherited characteristics you carry in the beginning of your life, वही inherited characteristics आप entire life में आपके साथ कहीं ना कहीं जो है वो चलता रहता है. Suppose a boy or a girl is shy in nature or introvert in nature.
then throughout the entire life, even after he is having an environment in which he has or he or she has to act in an extrovert manner, but उसका वो personality always जो है आपके पास वो carry forward होता है, वो personality always आगे जाता है. तो वैसे केस में फॉर एग्जाम्पल जैसे जस्ट यू एनालाइज, यू गो फॉर द इंट्रोस्पेक्शन, आप एनालाइज करो अपने बारे में, क्यों किसी को मैथ्स ही पसंद आता है, क्यों किसी को पोएट्री अच्छी लगती है. इवन इफ यू आर स्टडिंग बीबीए और एमबीए, मेनी ऑफ वुड बी हैविंग सम इंटरेस्ट फॉर म्यूजिक, किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है. हैव यू एवर थॉट ऑफ, किसी को लिटरेचर अच्छा लगता है, किसी को नेचर के पास जाना अच्छा लगता है, कोई बहुत घूमना पसंद करता है. ये नेचर, ये जो पर्सनालिटी है, ये जो बिहेवियर है, दीज आर कॉल्ड इनहेरिटेड बिहेवियर. यू नेवर नो कि ये क्यों आप में आया है. बट वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसी के साथ चलना है. दोज हु आर नॉट allowing these inherited characteristics, then they would always face trouble in their personalities. So you have to positively welcome your inherited characteristics. जैसे for example, I will just correlate this thing with your practical life. कैसे ये काम करता है? जैसे for example, हमारे पेरेंट्स जो हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, बट पेरेंट्स के भी फिनेंशियल रेंजेस होते हैं. कोई पेरेंट्स आपको जो है एरोप्लेन की फैसिलिटीज देता है, कोई पेरेंट्स जो है आपके लिए सिंपल ब्रेड बटर आपको जमा करके देता है. बट इट डजंट मीन कि आप बाद में क्या हो, अगर आपके पेरेंट्स गरीब हैं तो आप उनको ही ब्लेम करने लगो कि बिकॉज यू आर पुअर दैट्स व्हाई आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. सो यू एब्जॉर्ब इट कि मेरे पेरेंट्स जैसे भी हैं, फॉर मी दे आर माय रोल मॉडल्स. इन द सेम मैनर, whatever inherited characteristics you get from your ancestors or through God, you have to accept it. पहले तो इसको accept करना सीखो. Yes, this is my limitations. Once you go for proper SWOT analysis of your personality कि भैया मेरे ये strengths हैं, मेरे ये weaknesses हैं, then you can comfortably analyze that in which particular area I have to work on my behavior. That is the main call of inherited characteristics. It doesn't mean कि आप inherited characteristics को change नहीं कर सकते हो. For that, but आप inherited characteristics को on the basis of situations भी, stimulus situations जो आते हैं उसके basis पे ही जान पाते हो. In leadership, there is a concept that is called contingency approach. Leaders are known at the time of emergency. सही लीडर की पहचान सिचुएशंस पे, इमरजेंसी सिचुएशंस पे ही होती है कि उस टाइम में वो बंदा कैसे रिएक्ट करेगा. इन द सेम मैनर, if you want to dig out the inherited characteristics in your behavior, then it's a very tough topic. Why? Because आपको खुद भी बहुत चीज पता नहीं चल पाता है कि आपका behavior कैसा है. So that's why I have mentioned some of the different resources through which we try to dig out our inherited characteristics. Jैसे for example, if you talk about psychology is a separate area where you try to understand human behavior. कोई बंदा कैसे अपने आप को आपको प्रेजेंट कर रहा है, whether it is his actual behavior or not, that can be analyzed through psychology. It is called human psychology, but it's very difficult. It's very difficult to predict the actual behavior of any person. कुछ अदर भी एरियाज हैं, जैसे you talk about astrology. Astrology science doesn't means give proper confirmation to these areas, but astrology, क्यों हम लोग ज्योतिष शास्त्र का हेल्प लेते हैं? आप देखोगे बड़े बड़े काम में भी आप ज्योतिष शास्त्र का यूज करते हो. You use numerology, आप नंबर्स पे अपने आप को जानने की कोशिश करते हो. आपके यहाँ कोई भी नया न्यूबॉर्न बेबी आता है, आप क्या करते हो? इसका भाई इसका जरा सा पंचांग बना दो, ये कैसा बनेगा आगे. क्यों? Because you are interested to know his inherited characteristics. Whatever means are there. आप हो सकता है साइंस doesn't take care of these astrology or numerology, palmistry, but इसका अलग पब्लिक में तो ये है. लोग तो इसको मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग लॉजिकली नहीं मानते हैं. यू यूज पाल्मिस्ट्री, आप देखो फिट लाइन क्या है, हार्ट लाइन क्या है. आप ऑलवेज यू बिकम क्यूरियस टू नो अबाउट योर एक्चुअल पर्सनालिटी. मैं कितना अच्छा करूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा कि नहीं, बिकॉज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सोल, जो आपके पेरेंट्स से आए हैं और कुछ अलमाइटी गॉड ने भी आपको प्रोवाइड किया है. दैट्स व्हाई यू कैन एनालाइज इन योर फैमिली ऑल्सो. आप 2-3 भाई हो, भाई बहन हो, सबकी बिहेवियर और पैटर्न को देखो, सब अलग अलग होते हैं.
तो जब बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी है तो सब अलग अलग क्यों हो गया? इट मींस देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग इन योर इंडिविजुअल बिहेवियर। तो ये अदर फैक्टर्स क्या हो रहे हैं? तो इन दैट यू कैन कंसीडर टू थिंग्स। वन इज अलमाइटी गॉड, इफ यू आर बिलीविंग ऑन इट, कोई तो है जो सिस्टम को चला रहा है इतने बड़े। मींस व्हेनेवर आई फील एनी डाउट ऑन गॉड, I definitely try to read solar system. Once you go through the solar system, you will start believing there is someone who is running the entire universe. ये किसी बड़ी पावर के थ्रू ही ये हो रहा है। तो एक वो आपको मिलता है। एंड सेकेंड थिंग इज environment. Environment also contributes in developing your individual behavior. For example, here in slide 2 you can find out a relationship between person and environment. According to Kurt Levin's field theory, आपके कर्ट लेविन्स जो थे उन्होंने एक और रेसिस्टेंस टू चेंज में उन्होंने चेंज मॉडल भी दिया है, काफी बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने एक इक्वेशन एस्टेब्लिश किया है। व्हाट इज दैट इक्वेशन? इट इज कॉल्ड B equals to F स्मॉल ब्रैकेट P into E, P comma E ब्रैकेट क्लोज्ड। What is B? B is behavior, and the functionality of the behavior depends upon person and its response collaboration with environment. आपका individual behavior in the beginning of my session I told you कि अगर if you are living in a forest, अगर आप एक जंगल में रहते हो जहां पे कोई नहीं है, कोई आबादी नहीं है, तो you cannot gauge your own personality also. आप कैसे बिहेव करते हो ये आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको बिहेवियर को जज करने वाला environment ही नहीं है। years after years भी आपको पता नहीं चलेगा कि how you like to interact with others and what is the expected behavior pattern of other ones. So here comes the contribution of environment. आप environment में ही जाके interact करते हो और based on their action or reactions आप अपने आप को guess करते हो कि this was expected behavior and because I behaved in this manner, that's why my behavior is quoted negative or positive. What is the second factor? That is called environment. Okay, you people are listening now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Relation between person and environment. और ये नहीं है कि आप you cannot change your inherited behavior or your learned characteristics also. मैं आपको environment, आपका behavior का एक दूसरा पार्ट भी अभी आपको बताऊंगा कि एक तो inherited characteristics आया और एक characteristic आप जो behavior आप कैरी करते हो ये आप इन्वायरमेंट से पिक करते हो। अब देखो मैं एक स्लाइड में आपको इसको दिखाता हूँ। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स पहले अभी हम लोग कर लेते हैं। न्यूमेरोलॉजी, पाल्मिस्ट्री, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर यू मींस ट्राई टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स, इसमें आपको उनके अप्रोचेस जो है आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। इंटेलिजेंस इज आल्सो वन ऑफ द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक चीज मुझे बताओ, सपोज इफ यू हैव गॉट ए personality in which your intelligence level is bit low, even after putting lots of efforts, do you think that you are going to justify your organizational position in trouble? So suppose if a parent is not that much intelligent and through genes it has passed to you also and your intelligence level is not up to that level, तो आपको थोड़ा सा सफर तो करना पड़ेगा, ठीक है। In terms of sex also, मेल और फीमेल, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी? जो फीमेल ओरिएंटेड जो पॉपुलेशन है ये थोड़े से पर्सनालिटी वाइज जो है थोड़े से इमोशनल कोसेंट उनमें ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि मेल को जो है आप बड़े बड़े जो है पोर्टफोलियोज में देखो, जैसे आर्मी में देखो, इवन अदर टफ पोर्टफोलियोज में अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन ऑफ मेल कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स हाई। क्यों? बिकॉज इट इज द सोसाइटी who has developed a stigma कि भैया मेल पर्सन जो होते हैं ज्यादा पर्सनालिटी वाइज ज्यादा टफ होते हैं, that's why they should be given the tough positions. I'm not saying here कि females are not doing anything. They are now means invaded each and every sector, each and every portfolio of jobs. But the actual factor is that it is obvious that through inherited characteristics ये देखा गया है कि women are more emotional than to male. As far as age criteria means आप एज क्राइटेरिया को अगर कंसीडर करते हो, आप देखो किस टाइप का इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। ओल्ड पीपल they are always cool headed, expected to be cool headed. If you talk about young people, they are always more energetic, more conscious towards their assignments. These are the inherited perspective of society.
रिलीजियन जो आप तय नहीं करते हो, जब आप बर्थ लेते हो तो आपका रिलीजियन ये आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, आप बर्थ से ही हिंदू मुस्लिम हो जाते हो, और ये भी एक इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, बिकॉज यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। आपको उसी के हिसाब से चलना है, आगे भी यू वुड बी गिवन और यू वुड बी ट्रीटेड बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स में रिलीजियन भी जो है एक फैक्टर काम करने लगता है। बट एक बार वंस यू डिग आउट योर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हूं, द पर्सन हु इज वेरी शाई इन नेचर। आप देखोगे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दे आर डूइंग वेरी वेल इन ऑफिसेज, बट जब भी उनको वीकेंड्स मिलता है, दे ट्राई टू गो फॉर द एनी ट्रिप where they come in front of nature, they like nature, वो अलग बैठना पसंद करते हैं, दे डू नॉट प्रेफर टू, बहुत का नेचर आप देखोगे कि दे डू नॉट प्रेफर टू मेक गॉसिप्स और टेक इंडिविजुअल एन नंबर ऑफ कॉल्स, टेलीफोनिक डिस्कशंस, बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं। बहुत लोग अपने पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, भैया मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे ड्राइंग करनी है। These through these inherited characteristics, first what is the expectation of this topic? First you go for the analysis, what kind of inherited characteristics I am having, and मुझे उसको कैसे, अगर in case in any weaknesses are there, then how do I rectify it? That is the most important thing. तो होना क्या है, एक सेकेंड पार्ट आप पहले कैरेक्टरिस्टिक्स का देख लो। एक तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स का इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप में ऑलरेडी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से आया है, और एक जो आप जैसे जैसे ग्रो करते हो, जैसे जैसे आपको सेंसेस आपके जो है डेवलप होते हैं, तो थ्रू लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ये आप अपने बिहेवियर में जो है फिर एड ऑन करने लगते हो, जो आप सोसाइटी से पिक करते हो। इसमें कई सारे टर्म्स हैं जो आपको पहले कॉन्सेप्ट इसके समझने जरूरी हैं। वन इज कॉल्ड परसेप्शन, second one is called attitude, values, ethics, beliefs, personality, और एक मैंने आपके कॉन्सेप्ट के लिए नॉलेज ट्रांसफर भी एक टर्म यूज किया है। What is perception? Perception means the way you perceive anything, the way you perceive the environment. जैसे फॉर एग्जाम्पल परसेप्शन को, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको कोट करता हूँ। ए पर्सन वॉज मूविंग और गोइंग थ्रू ऑन ए रोड, and all of a sudden, ये मैं आपको एक केस में आपको बताता हूँ, all of a sudden a small girl approached that person and she said कि uncle please help me, my father is dying, please help me, please save my father। उस टाइप से उस बच्ची ने उस बंदे को जो जा रहा था उसको बच्ची ने अप्रोच किया। all of a sudden that person thought कि her father must be in a problem, so he said that yes, I am coming with you। When he reached to the spot, he saw that one person was lying over there, or the blood was oozing out around him, and at the same time another person was trying to give a push back on his heart। जो बंदा सोया हुआ था उसके मतलब चेस्ट पे जो है दूसरा बंदा जो है पुश कर रहा था। तो दैट पर्सन who went with that little girl, he thought, देखो perception कैसे काम करता है, he thought and visualized, just a second, Yes, sir. okay, so what I was quoting over here through an example, कि just by seeing that scene, that spot, the person who went with that girl, he thought the other person is trying to kill her father, and because of that problem blood is oozing out, so it's a crime scene। देखो उस बंदे ने क्या परसीव किया, what perception he developed कि ये crime scene है। when he approached near to that spot, तो एक्चुअल प्रॉब्लम उसने क्या देखा, उस बंदे वो बंदा जो था डायबिटिक था, और बिकॉज ऑफ दैट डायबिटिक इशू ही गॉट फेंटेड, वो गिरा और उसे चोट लगी, ब्लड बाहर आ रहा था। और जो दूसरा बंदा था, बिकॉज ही गॉट कार्डियक अरेस्ट, और दूसरा बंदा जो है उसको फर्स्ट एड दे रहा था। ऑल ऑफ ए सडन हिज परसेप्शन गॉट चेंज। एक स्पॉट क्राइम सीन था, बट सडनली वो टोटली चेंज होके एक मेडिकल इमरजेंसी में टर्न अप कर गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन। हाउ डू यू परसीव द एनवायरमेंट, दैट मैटर्स अ लॉट। Your perception may be right or may be wrong also.
in the case of any relationship you can find out. आप परसेप्शन अपने फैमिली रिलेशंस में भी देखो, ये पल पल बदलते रहता है. अगर आपकी बॉन्डिंग से स्ट्रांग नहीं है तो कई बार ऐसा होगा कि आपके फ्रेंड सर्किल में, इफ यू टच योर फ्रेंड सर्किल, आप देखोगे कि कुछ फ्रेंड्स आपने छोड़ दिए बिकॉज ऑफ रॉन्ग परसेप्शन. ये बंदा ऐसा नहीं था, ये गलत बंदा है, इसलिए यू परसीव्ड इन दैट मैनर, और उसके बाद आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया. लेटर ऑन व्हेन यू रियलाइज कि उसने ऐसा नहीं किया था, ऑटोमेटिकली अगेन यू चेंज योर परसेप्शन. So that's why perception directly interacts with your environment. तो आप you develop one perceptual means concept. जैसे जैसे आप बड़े, once you see that there is lot of corruption, these are, मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा बता के आपको समझाऊं. Pardon? आवाज क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. आवाज आ रही है. Yes, sir. आवाज आ रही है. अब देखो ये कैसे होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, once you grow in society, you develop some values. वैल्यूज का यहाँ क्या डेफिनेशन दिया, इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन ऑफ ए सिचुएशन. कैसे वैल्यूज, जैसे आप फैमिली में, व्हेनेवर यू रिमेन इन फैमिली, तो आपके फादर आपको क्या बताते हैं, हमेशा ईमानदार रहो, दूसरों का नुकसान मत करो. दीज आर द सर्टेन वैल्यूज यू कैरी फॉरवर्ड थ्रू आउट योर इंटायर लाइफ, एंड बेस्ड ऑन दोज वैल्यूज यू डेवलप ए परसेप्शन. उन वैल्यूज पे आप परसेप्शन डेवलप करते हो, और उसके बाद यू एनालाइज द सिचुएशन. सपोज आपने वैल्यूज क्या देखा, वैल्यूज में देखा कि मुझे बोला गया ईमानदार रहो, बी ऑनेस्ट, and in that and you developed this kind of values, societal values in you, and then you started perceiving the environment. In that environment if you find कि नहीं भैया ऐसे लोग भी समाज में फल फूल रहे हैं जो कि करप्शन कर रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है, then you try to mold your values also over there. फिर आप बोलते हो कि नहीं भैया ये हमेशा ईमानदार बन के इस कलयुग में रहना काफी डिफिकल्ट है. Then you start compromising with your values, as well as you go for wrong perception also. Once you acquire values from society, it also works once you go and join any organization. तो perception कैसा है, values के base पे, जो values आपके ancestors, society, family members जो आप में input दे रहे हैं, उसके basis पे आप एक perception develop करते हो, और उस situation environment से अपने values को compare करते हो. And if you find that your values are properly working, then you stick to your perception कि मैं सही हूं. But if you find your values are not going through according to the rules and compliances of society, तो आप क्या करते हो, अपने perceptions में भी changes लाना start करते हो. और वैसे केस में फिर with wrong perception आप क्या हो जाते हो, आपकी personality, behavior में भी changes आने लगते हैं. What do you mean by attitude? जो आप कभी कभी बातचीत में कहते हो ना, इस बंदे का यार एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है. व्हाट इज दैट एटीट्यूड? इफ यू हैव गेन्ड परसेप्शन, इफ यू हैव डेवलप्ड परसेप्शन फ्रॉम द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू दैट एक्शन और रिएक्शंस होने पे जो आप रिएक्शंस दे देते हो, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड. एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि आपने परसेप्शन में अपने आप को परसीव किया हुआ है कि भैया, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देके इसको तुमको समझाता हूं. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव परसीव्ड कि for this particular area, if someone has said to you भैया इस एरिया में अगर आप जाओगे तो ये एरिया आपके लिए डेंजरस हो सकता है. Now you have developed a perception, automatically you developed a perception कि I have instructed by my father that in this area there may be a problem. आपने perception पहले से ही develop कर लिया है. अब based on that, if any simple person approaches you in that area, तुमको क्या लगेगा कि he is a गुम, वो आपको तंग करने ही आ रहा है, और ऑटोमेटिकली आपका एटीट्यूड उस बंदे के लिए नेगेटिव हो जाएगा. तो दिस वे इट गोज ऑन. whatever perception or values you have developed in you, according to that you behave and it becomes your attitude. ये समझ में आया आप लोगों को? These are very very big topics. इसके लिए ये एक सब्जेक्ट ही मैं इस पे लेता हूँ. And what do you mean by ethics? Ethics का क्या मतलब होता है कि when your principles are codified, then it becomes ethics. जैसे for example, if you carry a value that is called be honest, ये एक वैल्यू हो गया.
But if you go and touch the organization, honesty is the best policy अगर आपको ऐसा मिलता है, because it is codified, then it becomes ethics. Okay, and beliefs क्या होता है? Beliefs, whatever here it is written in definition, and acceptance that something exists or it is true, especially one without proof. जैसे फॉर एग्जाम्पल सुपरस्टिशियन सिचुएशंस आप देखो, बिल्ली रास्ता काट जाती है, कितने भी आप एजुकेटेड हो, हम में आप में कई लोग जो हैं, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करो, मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं, आप थोड़ी देर के लिए कहते हो रुक जाओ भाई, इट इज कॉल्ड बिलीफ, बिकॉज समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ सिचुएशन. मैं आपको एक अपनी सिचुएशन बताता हूं. श्रावण मास में हम लोग जब भोलेनाथ की पूजा होती है, तो उस इंटायर मंथ में नॉन वेजिटेरियन फूड हम लोग नहीं लेते हैं. Yes. My own experience that I'm sharing with you. And in my young age, what I did one day, that in between Shravan Mass, I consumed non-vegetarian food. मुझे इतना मन कर गया कि मुझे लगा मुझे खाना चाहिए, और मैंने खाया. It so happened that after passing 2 to 3 days, I started getting pain in my stomach. वो मेडिकल रीजन होगा, मे बी इट वुड बी कंप्लीट मेडिकल रीजन. आई गॉट ट्रीटमेंट और मैं ठीक भी हो गया. बट इट स्टार्टेड ए बिलीफ इन मी, भैया श्रावण मास में नॉनवेज मत खाओ, ये अच्छी चीज नहीं है. दिस वे इट वर्क्स. तो इस टाइप के कई बिलीफ्स आप अपने में डाल के रखते हो. आप जस्ट गो फॉर द इंट्रोस्पेक्शन. आई एम नॉट सेइंग, बहुत लोग अपने बिलीफ्स को छुपाते भी हो. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट क्रिकेट, आप लोग यंग ब्लड हो, क्रिकेट बहुत देखते हो, यू जस्ट गो एंड एनालाइज. कोई बल्लेबाज, बड़ा बल्लेबाज वही बैट से खेलेगा जिससे उसने वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीता. ये सब क्या चीजें हैं? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्न कैरेक्टर, जो आप समाज से एक्वायर कर रहे हो अपने पर्सनालिटी में, जो आप अपने आप को डाल रहे हो. परसेप्शन थ्रू एटीट्यूड, थ्रू वैल्यूज, थ्रू एथिक्स, थ्रू बिलीव्स, थ्रू पर्सनालिटी. पर्सनालिटी, इफ यू टॉक अबाउट पर्सनालिटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज आर ओवर देयर. हो सकता है आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की हो, ये भी हो सकता है. कैसे इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को? इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स. आपने डेवलप कर लिया इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, यू मे बी हैविंग एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी. कुछ लोग बहुत ओपन होते हैं, जिनका पीआर बहुत स्ट्रांग होता है, इट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन. आप देखोगे उनके बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड सर्किल काफी बड़ा होता है, extrovert personality. But if you talk about organizational personality, then in that case ambivert personality is expected. There should be a balance between your introvert personality and extrovert personality. तो आप इन learned characteristics से, जो आप सोसाइटी से, फैमिली से, सभी जगहों से, सिचुएशन से जो आप पिक करते हो, that also gives a glimpse of your personality. अब तुमको इस इंडिविजुअल बिहेवियर में समझ में आ रहा होगा ये चीज, कि आपका जो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है और लर्न कैरेक्टरिस्टिक, इसके कॉम्बिनेशन से आपका इंडिविजुअल बिहेवियर प्रिपेयर होता है. अब आई विल जस्ट टेल यू अबाउट वन मोर थिंग. आई विल एस्टैब्लिश, आई विल ट्राई टू एस्टैब्लिश, जस्ट अ सेकंड. I will try to establish the relationship between individual behavior. अब just देखो behavior का range क्या होता है. What is the range? If you are having only control over your individual behavior, and if it is not making any kind of impact, if it is not making, I'm again repeating this line, if it is not making any kind of impact over individual behavior, then in that case there is no any problem. But if you are interacting with someone else, if you are interacting with environment, then your individual behavior would be quantified. तब उसका आपको जो है, आप किस टाइप का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, ये डेफिनेटली ये बिहेवियर आपका जो है उसको हम लोग एनालिसिस मोड में ले जाएंगे. So your individual behavior, if it comes in contact of environment, आपको उसके लिए जो है सही individual behavior carry forward करना बहुत important है. And how does it create impact over group behavior? Because if you are going to join any organization, आप देखो इस टॉपिक का importance मैं समझाता हूँ. अब suppose different kinds of individual behavior के साथ लोग organization में जाते हैं, different inherited characteristics एंड लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स. अब कोई बंदा एक ऐसे फैमिली से आता है जिसकी फैमिली में मान लो कि फादर जो हैं
बहुत ड्रिंक करते हैं, द बॉन्डिंग बिटवीन फादर एंड सन डजंट रिमेन कूल। इफ फैमिली में बहुत सारे फिनेंशियल इश्यूज हैं, सपोज वो बंदा बिल्कुल बहुत नेगेटिव अपब्रिंगिंग के साथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है, बिकॉज यू हैव गॉट गुड एजुकेशन, उसने क्या किया है, कोई कंपटीशन निकाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल इश्यूज उसने निकाला है, बट वो जो इंडिविजुअल बिहेवियर जो उसने अपने अपब्रिंगिंग में कैरी फॉरवर्ड किया है, जो उसने सोसाइटी से लिया है, पिक किया है नेगेटिविटी, वो उसके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर में भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कोई बंदा क्या है, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देखा है, तो इन दैट केस ही मे डेवलप सम काइंड ऑफ कूल हेडेड पर्सनालिटी। तो ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स में क्या होगा कि आप उन बिहेवियर के साथ अगर ग्रुप में एंट्री लेते हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, it becomes very difficult for a team leader to channelize the entire group and get the utilization of optimum resources. तो इसका यूज कैसे करेंगे? जस्ट a second. Okay, so I will just establish the correlation. Now, if you suppose, if you join any organization, then definitely you'd be kept in a formal or informal group. Formal group means what? That if you are having any assignment, that assignment cannot be coordinated just because of your individual identity. You must have to join any particular group. अब जैसे आप ग्रुप में ज्वाइन करते हो, जैसे आप ग्रुप में ज्वाइन करते हो, आपको आपका जो वीक इंडिविजुअल बिहेवियर, इफ यू आर हैविंग वीक इंडिविजुअल बिहेवियर, आपने टाइम के साथ उसको स्ट्रांग नहीं किया है, उस ग्रुप में आपको सस्टेन करने के लिए उस वीक पर्सनालिटी में आपको दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। यू कैन जस्ट एनालाइज क्यों सब लोग स्टार्ट में ही एज ए फ्रेशर जब कहीं ज्वाइन करते हो, ऑल ऑफ ए सडन आप क्या डिसाइड करते हो, मुझे छोड़ देना है ये जॉब, बिकॉज प्रेशर इज दैट वेरी हाई। Why it is so? Because you do not find yourself comfortable because of having weak individual behavior in that particular group or organization. तो आप क्या करते हो, स्विच ओवर्स का प्लान करते हो। बट इफ यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ, एज फार एज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक में आप बहुत स्ट्रॉन्ग आए हो, और जो लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स भी है वो बहुत स्ट्रांगली आप कंज्यूम किए हो, वैसे केस में क्या होता है, यू कैन नॉट गो फॉर स्विच ओवर्स, आप बहुत स्ट्रांगली ऑर्गेनाइजेशन में आओगे। बट इफ यू आर हैविंग एनी इश्यूज, इफ यू आर वीक इन योर इंडिविजुअल बिहेवियर, तो यहाँ आपका प्रॉब्लम होता है। तो जैसे आप देखो, ग्रुप फॉर्मेशन एक स्टेज होता है, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल बिहेवियर का समझाता हूँ। सपोज कोई ग्रुप फॉर्मल ग्रुप आप ज्वाइन करते हो, या इवन ग्रुप भी ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन में आप इसलिए ज्वाइन करते हो क्योंकि उसमें कुछ असाइनमेंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेशंस होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज देखो मैंने जो दिया है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिंग, सेकंड स्टेज इज कॉल्ड स्टॉर्मिंग स्टेज, देन नॉर्मिंग स्टेज, then performing stage, and last adjourning stage. What do you mean by forming stage? Once you join any formal group, उसी दिन से आप देखोगे कि जो बंदा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर का है वो डोमिनेंस दिखाने लगता है। और इफ यू आर हैविंग एनी इश्यूज इन योर इंडिविजुअल बिहेवियर, आप प्रॉब्लम उसी दिन से, फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है। यू विल फाइंड आउट इवन इन योर जीडी क्लासेस, यू कैन फाइंड क्लियरली those who are very strong personality, they are leading the topics from you, they are snatching the topics from you, और आप देखते रह जाते हो। क्यों देखते रह जाते हो? क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट आउटस्पोकन, यू आर बिट हैविंग बिट शाय नेचर, यू डू नॉट वांट टू रेज क्वेश्चंस, रेज योर वॉइस इन क्लासेस। तो आप क्या होते हो, इवन आफ्टर हैविंग वेरी लॉजिकल इन एनी सब्जेक्ट, आप क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो सामने वाले को क्या पता चलेगा कि आपकी पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग है। तो इवन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, इफ ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मिंग एनी पर्टिकुलर फॉर्मल ग्रुप, फॉर्मिंग स्टेज में ही अगर आपकी वीक इंडिविजुअल बिहेवियर है तो आप फंसने लगते हो। Because once you form, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेक एग्जाम्पल ऑफ योर बीबीए ग्रुप, फर्स्ट डे से ही आप सब दोस्त नहीं बन गए होंगे, धीरे धीरे आप बनते हो, सेमेस्टर वाइज अब ये डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि आप सेम ट्यूनिंग खोजते हो, बिकॉज ऑफ योर इंडिविजुअल बिहेवियर, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, आप सेम ग्रुप खोजते हो। भैया मेरा इससे ट्यून्ड अप, आई एम ट्यून्ड अप विद दिस बॉय और दिस गर्ल ओनली, तो आप उसी से दोस्ती रखते हो।
तो दिस वे यू डेवलप इनफॉर्मल ग्रुप इवन इन बीइंग इन ए फॉर्मल ग्रुप क्लास। आप इनफॉर्मल सबके साथ आपकी सेम ट्यूनिंग नहीं रहती है। दिस इज Yes, कॉल्ड sir. फॉर्मिंग, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिंग स्टेज। व्हाई इट इज कॉल्ड फॉर्मिंग स्टेज? क्योंकि वंस यू ज्वाइन एनी फॉर्मल ग्रुप, तो आपके एटीट्यूड, आपके वैल्यूज, आपके परसेप्शन, आपके इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक क्लैश स्टार्ट होता है, एक आर्गुमेंट स्टार्ट होता है दूसरे लोगों के साथ। इट इज कॉल्ड स्टॉर्मिंग स्टेज। जब आप अपने लॉजिक्स देते हो, सामने वाला अपना लॉजिक दे रहा है और एक क्लैश स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि मेरी ट्यूनिंग किससे बनेगी और किससे नहीं बनेगी। क्यों? बिकॉज यू आर हैविंग ए लिमिटेशंस ऑफ योर बिहेवियर। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिमिटेशंस हैं, और आपके जो परसेप्शन, वैल्यूज, एटीट्यूड, एथिक्स जो आप कैरी कर रहे हो, उसके भी एक लिमिटेशंस है। उसके बेसिस पे आप स्टॉर्मिंग स्टेज में अपने को सेटल डाउन करते हो। वंस यू गॉट सेटल डाउन, देन यू स्टार्ट नॉर्मिंग स्टेज। आप नॉर्मलाइज हो जाते हो। फिर आप नॉर्मल वे में जो है, आपके फिक्स फ्रेंड्स हैं, आप क्लास में भी 4-5 फ्रेंड्स से ही इंटरेक्ट करते हो, और क्लासेस आते हो, उन्हीं के साथ लंच ले रहे हो, उन्हीं के साथ घूम रहे हो, और उन्हीं के साथ जो है आप वापस भी आ रहे हो। इट इज कॉल्ड नॉर्मिंग स्टेज। देन Yes. यू स्टार्ट परफॉर्मिंग। तब आप फोर्थ स्टेज में परफॉर्म करना स्टार्ट करते हो। आप फिर सेमेस्टर्स को ध्यान में रखते हो, पढ़ाई करते हो, कंफर्टेबल हो जाते हो, और लास्ट में जब आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है, इट इज कॉल्ड एडजर्निंग स्टेज। अब ये आप बताओ मुझे, एडजर्निंग स्टेज मींस नाउ आपका बीबीए खत्म हो गया, आप अलग अलग विंग में चले गए, आपका ये फॉर्मल ग्रुप टूट गया, इट इज कॉल्ड एडजर्निंग स्टेज। नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क you people, in through this individual behavior, if you find that there is problem in your individual behavior, so whether you would be comfortable in joining any kind of group. Is it possible? It's not possible because you are not comfortable in that group. That's why you need to go for proper analysis of, just a second. Just a second. Why this problem is coming again and again? Okay, so now this is the different group stages, and one more slide I have added over here, that is called career stages. That stage is also very much important. In this career stage, you will go through the different stages of your career. आपका career अभी बहुत different stage में move on होगा। क्या क्या वो stages हैं? First stage is called exploration stage. अभी आप explore as a student, आप exploration stage में हो। What does it mean? Means you are exploring your career. Presently you are doing BVA, maybe in future you will go for MBA, or you will go for some other education also. And what is the purpose of your education or your exploration? To get a very good job, to get a good life. So this is called exploration stage. Now in this stage also, if you are having any problem or any issues in your individual behavior, even in that prospect also आप struggle करोगे। क्यों करोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल, अगर आपको नॉलेज, अगर इंटेलिजेंस कम है, ग्रास्पिंग थ्रू इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, आप समझने में कि आपके सब्जेक्ट में जैसे एक होता है स्टैट्स, एसक्यूटी, हम लोग एमबीए में एसक्यूटी पढ़ते थे, स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। आप देखिए कि आसान, वो एंजॉय करता है उस सब्जेक्ट को, बट किसी के लिए वो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज you are having one inherited characteristic in which you do not have interest for mathematics. अब भैया वो सब्जेक्ट उसके लिए प्रॉब्लम है। तो in that what will happen in your exploration stage भी, जो characteristics, जो perception और जो different learned characteristics आप अपने में लेके चल रहे हो, if those characteristics are not strong, if you are not strong in your individual behavior, तो exploration stage आपका difficult हो जाता है। आप लॉजिकली इसको एनालाइज करो, हर कोई टॉप एमएनसीज में और हर कोई कैंपसेस एक टाइम में क्यों नहीं निकाल पाता है? क्यों 1 to 10 रोल नंबर्स होते हैं या 1 to 50 रोल नंबर्स होते हैं? क्योंकि आपका एफर्ट्स, आपकी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स और आपके लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स के जो पैरामीटर्स होते हैं, उसकी इंटेंसिटी प्लस माइनस हो जाती है। तो उस हाई और लो इंटेंसिटी में क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस अफेक्टेड हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन कोई बहुत अच्छा कर जाता है लाइफ में, और कोई इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से थोड़ा सा कम रह जाता है। बट इट डजंट मीन कि आप इन्वायरमेंट Yes. और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, बट इट नीड्स रिपीटिशन, एफर्ट्स, प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, तब आप अपने को अपग्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इन्वायरमेंट भी आपकी पर्सनालिटी पे अफेक्ट करता है। कैसे?
एक बंदा बहुत, मान लो कोई जैसे ओंगली माल डाकू का आपने नाम सुना होगा, ये बहुत ही बड़ा डाकू था, डेकायत, और ऑल ऑफ ए सडन बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म वो पूरा पर्सनालिटी उसकी चेंज हो जाती है। इन्वायरमेंट भी जो है आपकी पर्सनालिटीज को चेंज करता है, और आप भी अपने एफर्ट से इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हो। यू टेक एग्जांपल ऑफ महात्मा गांधी, एक ऐसा बंदा जिसने कभी वायलेंस को प्रमोट नहीं किया, नॉन वायलेंस और ट्रुथ पे चला, जो आज की इस लाइफ में ट्रुथ और ऑनेस्टी पे चलना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया, उन्होंने इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया because of his strong individual behavior. In the same manner, it is the requirement of organization that once you be in exploration stage, give your 100%. आप जब 100% नहीं देते हो, that's why problem goes on and goes on. तो this is called exploration stage. Then establishment stage आता है, mid career आता है, late career आता है और decline होता है। इन career stages में भी अगर आप analyze करोगे, जो establishment stage होता है, it comes in between 25 to 35 age. ये 10 साल के career stage में आप different companies को join करोगे, पैकेज को रिवाइज करोगे, अपनी आइडेंटिटी को जो है स्ट्रॉन्ग करोगे। इफ यू आर वीक इन योर इंडिविजुअल बिहेवियर, यू वुड नॉट बी मींस you cannot say that you are going to get establishment phase very early. आप स्ट्रगल कर रहे हो, you do not have that confidence to present any topic, और all of a sudden क्या होता है, जब establishment stage में आपको as a manager कहा जाएगा कि आप ये टॉपिक प्रेजेंट करो, आप कहोगे कि yes, I am not having that kind of courage. क्यों? Inherited characteristics is not that much strong and you have not practiced also. आप उस inherited characteristics को जो है strong भी नहीं बना रहे हो, आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, वही वीक पर्सनालिटी, इट कम्स इन बिटवीन 35 to 45, यहाँ पे आप फंसते हो। इन द बिगनिंग ऑफ योर करियर यू कैन गो फॉर कलरिकल काइंड ऑफ जॉब्स, आपके पास क्या है, डेटा का फिल्ट्रेशन कर रहे हो, जॉब के स्टार्ट के 4-5 साल जो है आप निकालोगे, यू कैन हाइड योर इंडिविजुअल बिहेवियर, आप अपनी पर्सनालिटी को हाइड आउट कर लोगे कि मैं काम कर रहा हूं, मेरा डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है, बट आपकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है आउटकम में नहीं आ रही। दैट इफ यू वांट टू कैरी your career growth in a positive manner, then you have to build up strong individual behavior. That's why the topic is saying foundation of individual behavior. That's why the topic, just a second.